हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। नीट 2023 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो अभी क्लास 12 में और जो अभी मोस्टली मई और या जून में 2023 में नीट होने वाली है। और क्लास 11 के बच्चे लोग तभी तो थोड़े रिलैक्स होंगे, बट दे शुड ऑल्सो स्टार्ट स्टडिंग so that they can also prepare nicely for their 2024 NEET exam. And so let's start with the topic that we have to cover today. Last time हम लोगों ने we have covered the structure of heart. We have studied about the in detail structure of heart. Today we will be discussing the next part of the circulatory system, that is blood vessels. As you all know, circulatory system consists of three parts, mainly the blood vessels and the heart. We have covered main the heart part and the blood vessels, and in the blood vessels today we will be covering these important topics such as circulatory pathways, double circulation, major veins, major arteries, artery and vein, layers of blood vessels, capillary, and the distribution of blood. So mainly we will be saying about the three major blood vessels, that is artery, vein, and capillaries, and about their structure. So first of all, let us see what is circulatory pathway. That is the pathway of the circulation that moves in our body by the help of heart. Heart pumps the blood, as you all know. So it pumps the blood through aorta to all the body tissues, and all the body tissues then they send all the metabolic waste products into the blood, and this deoxygenated blood enters into the right auricle. So you can see, if you talk about the pathway, then first of all the deoxygenated blood reaches the right auricle, then to the right ventricle, then it gets pumped out to the lungs for oxygenation through pulmonary artery, where it reaches the lungs for oxygenation. So we have to remember this, mostly it is for oxygenation, and it is for oxygenation, and then via the pulmonary vein it reaches the left atria, then to the left ventricle, then it is transported to the whole body, to the upper part of the body and to the lower part of the body, then it again reaches the tissues, and then again it comes back to the heart. So thus we see that in these blood vessels, they reach the heart two times. दो बार blood हार्ट में आती है, इसीलिए it is called as double circulation. So one time it receives deoxygenated blood, then it sends to the lung, and then next time the lung sends the oxygenated blood, and these oxygenated blood are sent throughout the body for the tissues. So for then the tissues, they send back the deoxygenated blood into the heart via the right atria. So this complete circuit has two parts. One is the pulmonary circulation. This is the pulmonary circulation that happens in heart and among the lungs, and then the other is the systemic circulation, which includes the heart and the body tissues, upper body tissues and the lower body tissues. So in humans we have a double circulation that we have to remember. Understood? Okay, next we will be seeing about the blood vessels that the atria receive. You have to remember that the largest vein is the inferior vena cava, then comes the superior vena cava. So this is the this picture that is showing, it is showing the dorsal view of the heart. Dorsal view मतलब कि क्या, पीछे की तरफ से शो कर रहा है, तो वर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम पीछे की तरफ करें तब, यानी कि इसमें लेफ्ट इस साइड हो गया, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया. अच्छा चलो एक बात और बताते हैं आप लोगों को. यहाँ पे ये तो डिस्कस करेंगे ही, जैसे कि कोई भी ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा है, कुछ भी सर्जरी हो रहा है, अगर स्टर्नम को कट करके हार्ट को अगर देखिएगा, हार्ट को डायरेक्टली आप देखिएगा व्यू, तो मोस्टली इट विल बी, जो पार्ट दिखेगा दैट विल बी वेंट्रिकल्स, और जो एंड द ऑरिकल, जो ईयर, डॉग के ईयर के शेप जैसा जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था लास्ट क्लास में, वो दिखेगा, एंड द वेंट्रिकल पार्ट एंड द ऑरिकल mostly covered, mostly it will be mainly consisting of the ventricles. तो जो ऑरिकल पार्ट है, जो
जो उसमें जो ब्लड जो इनफ्लो हो रहा है, जो रिसीव कर रहा है, वो मोस्टली डॉर्सल साइड से हम देख सकते हैं। इसीलिए हमने ये वाला डायग्राम देखना है। जिस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, मैंने लिखा भी है डॉर्सल व्यू ऑफ द हार्ट। तो इसमें राइट साइड की बात करें तो राइट एट्रियम में क्या क्या आता है बताइए। सबसे पहला क्या है, सुपीरियर वेना कावा, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा। फिर क्या होगा, ये इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा कहाँ से लाएगा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लाएगा डीऑक्सीजनेटेड। और तीसरा खुद हार्ट के मसल्स भी तो कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड सब रिलीज करेंगे ना। दे ऑल्सो रिक्वायर वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ करने का, उनको भी तो कुछ जरिया चाहिए ना। तो कोरोनरी साइनस से वो आ गया, तो ये 3 रिसीव करेगा राइट एट्रिया, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। देन कम्स द अदर लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया के अंदर क्या क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स आएंगे, है ना। और ये लंग्स रिसीव होते हैं, तो 2 लेफ्ट साइड से और 2 राइट साइड से, टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रिया में आएंगे। सो यू कैन सी इसके अंदर क्या है, ये मैंने ए से मार्क कर दे रहा हूँ, ये क्या है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है। और ये क्या है, दिस इज राइट पल्मोनरी वेन्स। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। तो नथिंग डिफिकल्ट इन दिस, ओके, वी विल कंटिन्यू। चलिए चलते हैं आगे। sorry about that. Okay, blood vessels that atria receive, okay sorry, blood vessels that the atria distribute, यहाँ पे distribute होगा, है ना। this is not receive, they distribute sorry, डिस्ट्रीब्यूट, राइटिंग विद द माउस, ओके। तो ब्लड वेसल्स दैट एट्रिया डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो क्या होगा इसमें 2 इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप लोग जानते हैं। पल्मोनरी ट्रंक, जो कि फर्दर पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड करेगा, इसके ये 2 ब्रांचेस है। फिर एओटा मेनली सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है, जो कि दिस साइड आपका लेफ्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज द राइट। तो लेफ्ट से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा और दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी, याद रखिएगा। और राइट में से आपको पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड जाएगा लंग्स को, ओके। नाउ वी विल सी अबाउट द इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ एओर्टा, दिस में कम इन एग्जाम, एटलीस्ट यू शुड नो 3 थिंग्स जो इसके पार्ट हैं, जैसे कि असेंडिंग एओर्टा, दिस हियर आई एम, दिस इज द असेंडिंग एओर्टा, और ये आर्क ऑफ एओर्टा, और फिर ये डिसेंडिंग एओर्टा। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा। जो असेंड करते हुए जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग एओर्टा। फिर आर्क ऑफ एओर्टा, जो आर्क बना रहा है, आर्क, तो वो आर्क ऑफ एओर्टा। और फिर डिसेंडिंग एओर्टा, जो नीचे जाएगा टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी, उसके सारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा ब्लड। तो सबसे पहले असेंडिंग एओर्टा के अंदर 2 ब्रांचेस आ जाते हैं, लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट के कार्डियक मसल को सप्लाई करेगा। देन कम्स द आर्क ऑफ एओर्टा। आर्क ऑफ एओर्टा के मोस्टली यहाँ पे 3 ब्रांचेस होते हैं। एक तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होता है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, देन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये याद रखिएगा, 1, 2 और 3 मोस्टली है। फिर उसके बाद ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी भी डिवाइड हो जाता है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, यू कैन सी ओवर हियर, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी। तो दोनों तरफ बॉडी का लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेगा कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन वेन। एक लेफ्ट के लिए हो गया, एक राइट के लिए हो गया। तो ये देखिए कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये याद रखिएगा बस। कॉमन कैरोटिड आर्टरी इधर है और इधर क्या है, सबक्लेवियन आर्टरी, दोनों तरफ, एक लेफ्ट है और एक राइट है। बट यहाँ ध्यान रखना है कि राइट में एक कॉमन आर्टरी भी है, जिससे बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन आर्टरी में। तो उसका क्या नाम है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है, या ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। तो ये उसके ब्रांचेज है। ये तो दिस ऑल विल डिस्ट्रीब्यूट मोस्टली टू द अपर साइड ऑफ द बॉडी।
एंड टॉकिंग अबाउट द लोअर साइड ऑफ द बॉडी, वो डायफ्राम को नीचे होते हुए, यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो है ना, डायफ्राम को नीचे हुए यहाँ पे ये एब्डोमिनल एओर्टा करेगा, जो नियर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा। ओके, और एओर्टा से स्टार्ट हो रहा है तो उसको एओर्टिक रूट बोलते हैं, वहाँ पे एओर्टिक वाल्व प्रेजेंट है, दिस ऑल यू नो। ओके, देन यहाँ पे असेंडिंग एओर्टा आया, फिर आर्क ऑफ एओर्टा आया, और फिर डिसेंडिंग एओर्टा एकदम नीचे गया तो उसको क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल एओर्टा। ओके, विच विल फर्दर देन डिवाइड, सी। Then there are few terms that you have to know about, that is carotid sinus, and then in carotid body, and one is aortic body. So ये एग्ज़ाम में मोस्टली आते हैं, तो इसको याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले क्या है कैरोटिड साइनस। साइनस मतलब कोई भी चीज़ फैला, कोई भी फैल गया चीज़ है ना, आर्टरी के अंदर कोई भी डायलेटेशन हो गया तो उसको क्या बोला जाता है, साइनस। तो कैरोटिड साइनस कहाँ प्रेजेंट होता है, कैरोटिड साइनस कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये देखिए डायग्राम में, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ना, यहाँ पे जहाँ पे ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी होता है हमारा, यहाँ पे लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स के पास, यहाँ पे नेक के पास कॉमन कैरोटिड आते हैं, वहाँ पे उसका बाइफर्केशन होता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रेन्स को सप्लाई करेगा, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी नेक और फेस को सप्लाई करता है। तो ये यहाँ पे जो बाइफर्केशन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है कैरोटिड बॉडी। कैरोटिड बॉडी क्या है, ये सर क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग को, मैं अभी बताता हूँ। कैरोटिड बॉडी कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं, नर्व सेल होते हैं, न्यूरल का सेल से डिवाइड होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के जो ब्लड प्रेशर होता है ना उसको मेंटेन करता है। सो दे आर द बैरो रिसेप्टर्स। बैरो मीन्स, बैरो का मतलब प्रेशर होता है, प्रेशर। तो हमारे बॉडी के अंदर जितना ब्लड प्रेशर उसको मेंटेन करता है, अगर ज़्यादा हो गया, कम हो गया, क्या हो गया, उसको मदद से उसको ठीक करता है। तो ये याद रखना है, बैरो रिसेप्टर्स इज रिलेटेड टू कैरोटिड साइनस। कैसे याद रखिएगा, साइनस है, साइनस कोई भी फैला हुआ चीज़ है ना, गड्ढा है, वहाँ पे प्रेशर से रिलेटेड काम होता है ना, प्रेशर ऊपर नीचे होता है तो उसको बैलेंस करता है, तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ है कैरोटिड साइनस, ठीक है। और एक नर्व का याद रख लीजिएगा, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, उसको सप्लाई करता है और वहाँ से वो मैसेज लेके जाता है फिर ब्रेन में, मेडुला में, जहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर के पास बच जाता है। ओके, देन कम्स द कैरोटिड बॉडी। कैरोटिड बॉडी क्या है, कैरोटिड बॉडी भी स्पेशलाइज्ड नर्व सेल है, जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है, ये बाइफर्केशन के पास, कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बाइफर्केशन के पास प्रेजेंट होता है। अगर हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बात करें, कॉमन कैरोटिड आर्टरी ब्रांच ऑफ एओर्टा है, हमने पढ़ा है ना, देखा उसमें, तो वहाँ से कॉमन कैरोटिड आर्टरी आया और नेक के पास ये ऐसे बाइफर्केट होकर डिवाइड हो गया, ये देखिए ऐसे डिवाइड हुआ, और फिर ये ऐसे यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे ये जो मैंने बनाया, यहाँ पे ऐसा कुछ हल्का सा फैला हुआ है, यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा फ्लैट नहीं है, यहाँ पे ऐसा फुला हुआ स्ट्रक्चर है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैरोटिड साइनस। यहाँ पे कैरोटिड साइनस प्रेजेंट है, और यहाँ पे मोस्टली ये साइनस टॉक अबाउट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के पास प्रेजेंट होता है। जैसे कि पिछले डायग्राम में देखिएगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया कैसे साइनस दिखाया हुआ है, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के पास साइनस प्रेजेंट है, और ये जो जॉइंट है, यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट है, यहाँ पे बॉडीज़ है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैरोटिड बॉडीज़। कैरोटिड बॉडीज़ का क्या काम है, कैरोटिड बॉडीज़ के पास स्पेशलाइज सेल होता है, उसको क्या बोलते हैं, कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स का कीमो वर्ड है, कीमो से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड कोई काम करेगा, केमिकल्स जैसे कि ब्लड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, ब्लड का जो पीएच है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, तो इट विल हेल्प इन डिटेक्ट, तो उसको नॉर्मलाइज करने में काम करेगा, ब्लड का पीएच। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है ना, ऑक्सीजन का प्रेशर, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के अंदर जो लेवल है, इट विल बी मेंटेन बाय कैरोटिड बॉडीज़, ये याद रखना है। ब्लड का पीएच, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो हमारे ब्लड में है, वो कौन मेंटेन करता है, कैरोटिड बॉडीज़। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, नर्व सेल्स, उसको कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं। सिमिलरली आर्क ऑफ एओर्टा, यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम, आर्क ऑफ एओर्टा के पास भी
कुछ एओटिक बॉडीज़ प्रेजेंट होता है, उसको स्पेशलाइज सेल्स को क्या नाम दे दिया, एओटा के पास है तो नाम क्या दे दिया, एओटिक बॉडीज़। और ये सब इन दोनों बॉडीज़ के बीच डिफरेंस क्या है कि सप्लाई फंक्शन तो दोनों का सेम है, नर्व सप्लाई और ये ब्रेन को जो पहुंचाता है वो वहाँ पे याद रखना है। मोस्टली ये ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू कैरोटिड आर्टरी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू सप्लाई करता है, और एओटिक बॉडीज वेगस नर्व 10th नर्व के करता है। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व 9th क्रेनियल नर्व होता है। देखिए यहाँ पे भी डायग्राम में देख सकते हैं, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व क्रेनियल नर्व है, यहाँ पे कैरोटिड का बनाया है, कैरोटिड अभी ये कैरोटिड साइनस है, ये ब्लैक वाला देखो ब्लैक डॉट जैसा दिख रहा है वो कैरोटिड बॉडी हो गया। कैरोटिड बॉडीज वो कनेक्टेड है किससे, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से, फिर वो मेडुला ऑब्लोंगाटा में जाता है जहाँ पे सिग्नल वो हार्ट को सेंड करता है, फिर हार्ट को सिग्नल्स सेंड करता है टू मेंटेन द ऑल द ब्लड का पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का लेवल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एओटा का देखो आर्क ऑफ एओटा के बाद ऐसे ब्लैक डॉट यहाँ पे बना हुआ है, इसका कनेक्शन किसके थ्रू जा रहा है, 10th नर्व। ये देखो ये ऐसे ये वाला इसको अंदर, ये अंदर जो दिख रहा है ये दोनों ये किससे जा रहा है, वेगस नर्व से। तो ये आपको याद रखना है। ओके, गॉट इट। फिर इसके बाद क्या है, एओटा के और अदर ब्रांचेस। ये तो अपर साइड ऑफ द बॉडी में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, दिस इज द अपर साइड ऑफ बॉडी का हम लोग ने ये सब पढ़ा। तो ब्रांचेस है एओटा के ऑलमोस्ट, कुछ ब्रांचेस के नाम जान लो। नीचे वाले जो डायफ्राम, ये रहा डायफ्राम को क्रॉस करते हुए नीचे आएगा तो इसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल एओटा। एब्डोमेन में आ गया है ना, तो ये तो ऊपर का थोरेसिक बोलते हैं ना, नीचे को क्या बोलते हैं, एब्डोमेन। तो नीचे आ गया तो एब्डोमेन में कुछ ब्रांचेस के नाम याद रखिए, है ना। मोस्टली ये इतने एग्जाम में नहीं आते, बट एटलीस्ट नाम जान लीजिए, क्योंकि आप लोग को फर्दर चैप्टर्स जो इंडिविजुअल में पढ़ना होगा तो उसमें काम आ जाएगा। सीलियक का ट्रंक, सीलियक आर्टरी का ब्रांचेस होता है क्या क्या, एक गैस्ट्रिक आर्टरी होता है जो स्टमक को सप्लाई करेगा, स्प्लेनिक आर्टरी होता है जो नाम से ही पता चल रहा है ना, स्प्लीन और या पैंक्रियास को भी सप्लाई करता है, और हेपेटिक आर्टरी लिवर को सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसके बाद फिर और भी फर्दर ब्रांचेस होते हैं, मेसेंट्रिक ब्रांचेस होते हैं, है ना, रीनल ब्रांचेस जो कि किडनी में जाएगा, और फिर गोनाडल ब्रांचेस है ना, मेल्स में टेस्टिस को सप्लाई करेगा, फीमेल्स में ओवरीज को सप्लाई करेगा, गोनाडल ब्रांचेस। और फिर इसके बाद एट द लेवल ऑफ फिफ्थ लंबार वर्टिब्रा पे यहाँ पे डिवाइड हो जाता है ये एब्डोमिनल एओर्टा दो पार्ट में, है ना, एक लेफ्ट बनाएगा और ये एक राइट बनाएगा। ये वाला राइट हो जाएगा, राइट कॉमन इलियक, और ये वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। फिर वो लेग्स में भी सप्लाई करता है, फीमोरल आर्टरी एंड ऑल, पॉप्लिटेल आर्टरी एंड फर्दर उसके बहुत सारे फीमोरल आर्टरी हो गया, टिबियल आर्टरी, बहुत सारे फर्दर उसके ब्रांचेस हैं। ठीक है, उतना नहीं याद रखना आप लोग, एटलीस्ट इतना याद रखिएगा क्या, एब्डोमिनल एओर्टा का सीलियक आर्टरी होता है जिसके कि 3 ब्रांचेस है, गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी और हेपेटिक आर्टरी, और फिर रीनल आर्टरी और टेस्टिकुलर या फिर ओवेरियन आर्टरी। उसके बाद फिफ्थ लंबार वर्टिब्रा है ना, फिफ्थ लंबार वर्टिब्रा, फिफ्थ लंबार, एल स्टैंड फॉर लंबार ना, फिफ्थ लंबार वर्टिब्रे के पोजीशन पे एब्डोमिनल एओर्टा डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी और राइट कॉमन इलियक आर्टरी जो कि लेग्स को सप्लाई करेगा। गॉट इट, अंडरस्टूड? ठीक है, लॉन्ग। फिर उसके बाद क्या है, आर्टरी और वेन, है ना, आर्टरी और वेन और कैपिलरी के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जानते हैं। ठीक है, आर्टरी क्या हो गया, चलिए बताइए। आर्टरी तो ये बहुत सबको आसान है, मैंने पहले भी बताया, याद करने का तरीका है ना, ए से आर्टरी होता है और ए से अवे। ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया है, हार्ट से ब्लड अवे लेके जा रहा है तो वो क्या हो गया, आर्टरी। ठीक है, और फिर पूरे टिश्यूज से ब्लड वापस लेके वेन आ रहा है, ब्लड लेके वापस आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वेन। ठीक है, व से वेन, व से वापस, हिंदी में वापस मतलब क्या होता है, वापस लाना, रिटर्न करना, तो याद रखिएगा। ठीक है, एक भी याद रखिएगा तो काफ़ी है ना, ए से आर्टरी हो तो ऑटोमेटिक दूसरा हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, और मोस्टली आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, है ना, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या एक्सेप्शन है बताइए। ये दोनों, जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें नहीं होता है, कौन से आर्टरी में, कि पल्मोनरी आर्टरी हो गया, और दूसरा अम्बलिकल आर्टरी। ठीक है, उसके अम्बलिकल आर्टरी फीटस में होता है। ठीक है, उसके अंदर भी होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी एक्सेप्शन क्या है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सेप्शन है ब्लड वेसल्स का। तो उस तरह वैसे याद नहीं रखिएगा, जैसे आर्टरी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मोस्टली कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो अच्छी बात है, बट आर्टरी का मेन काम क्या है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना टिश्यूज़ में, ठीक है। और वो मोस्टली ऑक्सीजन सप्लाई करता है, बट इसके दो एक्सेप्शन से याद रखना है, पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी। सिमिलरली वेन का भी इसका एक्सेप्शन हो जाएगा, पल्मोनरी वेन और अम्बिलिकल वेन। फीटस में ये होता है ना, वूम्ब के अंदर, यूट्रस के अंदर, फीटस में अम्बिलिकल आर्टरी और वेन करता है, क्योंकि पता है ना हार्ट फीटस के अंदर तो ऑक्सीजन किसे मदर से लेता है ना, उसका लंग्स में ऑक्सीजन नहीं होता है तो ऑक्सीजनेटेड नहीं कर पाता है, तो ऑक्सॉल्ट उसको बना बनाया सब कुछ खाना बना बनाया ऑक्सीजन सब मदर से मिलता है ना फीटस को, तो इसीलिए उसके पास उसमें भी उल्टा हो जाता है, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद आया जिससे डिस्कस कर रहे थे, कुछ टॉपिक्स थोड़ा अलग है बट एटलीस्ट जान लीजिए, जैसे कि बच्चे का जब जन्म होता है आफ्टर बर्थ, है ना, वो बच्चे रोते हैं, है ना, मोस्टली वो क्या रोना एक आवाज़ होता है ना, दैट इज़ अ साउंड। जैसे कि लंग्स में जो फ्लूइड फिल रहता है, मतलब पैक रहता है, एकदम चिपके रहते हैं, फिर उसके अंदर जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आता है बेबी, तो उसके अंदर एयर फिल होने लगते हैं, है ना, तो एयर फिल होने लगते हैं, फिर वो एयर बाहर की तरफ जब निकलते हैं तो वोकल कॉर्ड्स उसके वाइब्रेट होते हैं। हमेशा याद रखना, जब वोकल कोई भी आवाज़ निकलता है तो एक्सपिरेशन, है ना, एक्सपिरेशन के दौरान ही आवाज़ निकलता है, तो आवाज़ निकलने से हवा बाहर निकलने की वजह से वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, तो ये आवाज़ आती है, तो बच्चे की रोने की आवाज़ आती है वही। तो बस चलिए ये याद रखिएगा। चलिए अब कुछ डिफरेंसेस जान लीजिए आर्टरी और वेन के बीच। ये तो आप लोग जूनियर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, है ना, तो इसके बारे में आप लोग को पता होगा। और फिर वेन और आर्टरी के बीच दूसरा डिफरेंस क्या है, वेन के वाल्व में किस में प्रेजेंट होता है, वाल्व वेन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड फ्लो बहुत धीरे धीरे होता है ना। आर्टरी में ब्लड किससे, हार्ट से मिला, एकदम वेंट्रिकल उसको पुश करते हुए हार्ट भेजा है, तो बहुत फोर्स रहता है, तो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है, तो आर्टरी फट नहीं जाए इसकी वजह से उसके वाल्व्स को बहुत प्रॉपरली बिल्डअप किया रहता है, इसीलिए उसमें मसल्स ज़्यादा होते हैं, तो और उसके वाल्व्स इसीलिए थिक होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और उसका ल्यूमन छोटा होता है, ठीक है। और वेन का ल्यूमन बड़ा होता है और उसका वाल्व्स थिन होते हैं, और इसमें वाल्व्स प्रेजेंट होता है जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन रखता है ब्लड का, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना है अबाउट द लोकेशन, है ना, मोस्टली आर्टरीज जनरली नीचे की तरफ पाए जाते हैं बॉडी में, स्किन से और एकदम नीचे रहते हैं, और स्किन से एकदम सुपरफिशियल क्या रहता है, वेन्स, है ना, इसीलिए जनरली जब ब्लड डोनेशन या कोई ब्लड सैंपल कुछ टेस्ट लिया जाता है, देखिए ना, तो मोस्टली वेन से लिया जाता है। और इसमें कौन सा वेन होता है ये याद रखिएगा, मीडियन क्यूबॉइटल वेन, जस्ट फॉर नॉलेज, है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आ गया तो याद रखिएगा, है ना, मीडियल क्यूबिटल वेन से मोस्टली ब्लड ड्रॉ किया जाता है सैंपल के लिए, ठीक है। जब लोग जाएंगे तो करेंगे ना एमबीबीएस में, तो यहाँ पे जान लीजिए, है ना, मीडियन क्यूबिटल वेन, ओके। इसके अलावा कुछ मैं बात कर रहा था ना कि आर्टरी मोस्टली डीप सीटेड होते हैं स्किन से नीचे, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑल्सो जिसमें कि आर्टरी मोस्टली सुपरफिशियल होते हैं, और वो दे हेल्प इन नब्स कैलकुलेट, है ना, जो बोलते हैं ना, वी हेल्प इन कैलकुलेटिंग द पल्स को कैलकुलेट करने में, पल्स को रीड करने में काम आता है। पल्स इज इनडायरेक्टली हम लोग हार्ट बीट का मेजर कर रहे होते हैं, है ना, दैट अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 72 बीट्स पर मिनट, तो वी कैन कैलकुलेट। यहाँ पे रेडिया होता है ना, रेडियल आर्टरी प्रेजेंट होता है इधर, रेडियल और या अल्नर आर्टरी ना, इसमें से भी हम लोग पल्स पता कर सकते हैं ना। ब्रेकियल आर्टरी होता है, स्टेथोस्कोप के मदद से वहाँ पे, और हाथ की मदद से भी पता कर सकते हैं पल्स, है ना। कैरोटिड यहाँ पे है ना, कैरोटिड होता है ऐसे प्रेजेंट यहाँ पे नेक के पास, है ना, इधर और लेफ्ट और राइट साइड दोनों में, तो वहाँ पे कैरोटिड आर्टरी में भी हम लोग वी कैन पल्स हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी पल्स होता है जो आप लोग को एमबीबीएस में जाएंगे ना, प्रैक्टिकल्स रहता है, पेशेंट दे दिया जाता है, बताया जाता है ना, शो करना होता है कहाँ कहाँ आप पल्स कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या है? लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारे आर्टरी, वेन और कैपिलरी है ना, इसके जो भी वेन लेयर होते हैं, क्या इसके जो स्ट्रक्चर, इसके वॉल का जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्या याद रखिएगा? सबसे अंदर से अंदर की बात करें तो सबसे अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका इंटरना ना, या फिर ट्यूनिका इंटीमा भी बोलते हैं। बीच वाले को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका मीडिया। और बाहर वाले को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंशिया। तो मोस्टली पहले यहाँ पे देखिए है ना, ये कट किया हुआ है सेक्शन, ये अंदर के तरफ वाला है, इसमें क्या बोलते हैं? ये एंडोथीलियम है ना। मोस्टली अंदर वाला लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। ये इनर लेयर जो प्रेजेंट है दिख रहा है ना, ट्यूनिका इंटरना का बना हुआ है। और मोस्टली स्मूथ मसल, ये बीच वाला दिख रहा है स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर, तो इसको मिडिल लेयर है ट्यूनिका मीडिया, इससे बना हुआ है। और फिर आउटर लेयर जो है ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसमें कोलेजन फाइबर से बना हुआ है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा और भी चीज़ें जो डिटेल है, ये थोड़ा ये हिस्टोलॉजी जब आप लोग पढ़ेंगे, जो स्टेन करेंगे, तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर दिखता है। इसके अंदर आप लोग कैसे जान सकते हैं? जैसे कि ट्यूनिका अंदर इंटीमा इनकी बात करें इंटरना में, तो सबसे पहले तो एंडोथीलियल लेयर होता है, फिर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना, समटाइम्स सब एंडोथीलियल सेल्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट। फिर उसके बाद इंटरनल इलास्टिक लैमिना प्रेजेंट होता है, बट मोस्टली ये आर्टरी में होता है, आर्टरी में इलास्टिक लैमिना होता है, कि तभी वो इसका इलास्टिसिटी मेंटेन रहता है, इसका इलास्टिसिटी मेंटेन रहता है। 1 मिनट। तभी इसका इलास्टिसिटी मेंटेन रहता है और ये कोलैप्स नहीं करते हैं, इसीलिए वेन्स कोलैप्स कर जाता है ना। ये और एक और इलास्टिक लैमिना इसमें भी प्रेजेंट होता है, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया में मोस्टली स्मूथ मसल्स होते हैं ना, स्मूथ मसल्स होते हैं, और एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना भी प्रेजेंट होता है, जो कि इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना में क्या प्रेजेंट होता है? कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और समटाइम्स स्मॉल ब्लड वेसल्स है ना, वैसा वेसल में लिखा हुआ, ये क्या है? स्मॉल नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो कि लार्जर आर्टरी में ना ज़्यादा मोटा होता है, थिक होता है। तो जनरली जो सिंपल आर्टरी होते हैं, तो उसमें ब्लड जो फ्लो करता है ल्यूमेन में ना, इसको ल्यूमेन बोलते हैं, जो फ्लो करता है, जो ये ऐसे है, तो ल्यूमेन में जो ब्लड फ्लो करता है, तो उससे न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो भी एक्सचेंज होता है, मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो जाता है आसानी से आसपास के एरिया में। बट अगर लार्जर जो होते हैं, जो वो काफ़ी थिक होते हैं, तो वो वहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू नहीं हो पाता है वहाँ पे, तो इसके कारण ब्लड, स्मॉलर ब्लड वेसल्स खुद उसके कोलेजन फाइबर्स से बाहर वाले एक्सटर्नल लेयर को सप्लाई करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स को वैसा वेसरम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए एक और बढ़िया सा डायग्राम, आई होप यू विल अप्रिशिएट दिस डायग्राम। इसमें देखिए क्या है, 3 लेयर है ना, ये याद रख, ट्यूनिका इंटरना है, जिसमें अंदर का लेयर को एंडोथीलियम है, फिर उसके बाद देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और फिर इधर देखिए ये क्या है? आर्टरी है ना, ये आर्टरी है, और ये क्या है? वेन है ना। आर्टरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? इंटरनल इलास्टिक लैमिना प्रेजेंट है। और उसके बाद फिर ट्यूनिका मीडिया दोनों में से है ना, स्मूथ मसल का बना हुआ है, और आर्टरी के अंदर स्मूथ मसल्स ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ स्मूथ मसल्स ज़्यादा होते हैं, थिक, ज़्यादा लेयर थिक होता है। और इसमें एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना भी प्रेजेंट होता है, जो कि इसका इलास्टिसिटी मेंटेन रहता है, इसका थिकनेस को। ठीक है, तो कोलैप्स नहीं होने देता है। और फिर इसके अलावा ट्यूनिका एक्सटर्ना प्रेजेंट है, जो कि कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है बाहरी लेयर। ठीक है, तो दीज आर द 2 मेन स्ट्रक्चर जो आपको मेन डायग्राम याद रखना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, वाल्व है ना, ह्यूमन के अंदर वाल्व होता है, वाल्व को जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। देखिए फ्लो के लिए मैंने आपके लिए डायग्राम भी ले आया हूँ। देखिए, ब्लड फ्लो इन द आर्टरी एंड वेन। देखिए आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है ना, पल्सेशंस के फॉर्म में मूवमेंट हो रहा है, देख रहे हैं, रुक रुक कर आ रहा है, लेकिन बट फास्ट है। और वेन के अंदर देखिए वाल्व्स है ना, गेट की तरह काम कर रहा है ना, ब्लड आया ऊपर गया, और फिर देखिए गेट क्लोज हो गया ना, वाल्व क्लोज हो गया, ताकि ऊपर का वाल्व, ऊपर जो ब्लड गए हैं वो वापस नीचे नहीं आ जाए। तो इसके वाल्व्स के थ्रू इसका मूवमेंट होता है, स्लो मूवमेंट होता है, और इसका आर्टरीज में फास्ट मूवमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और कंडीशन है जो जान लीजिए, वेन्स में है ना प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? वेरिकोज वेन है ना, वेरिकोज वेन जिसमें कम इन एग्जाम। ठीक है, वेरिकोज वेन
है ना, और ये स्पाइडर वेन, दोनों एक ही चीज़ है मोस्टली। अगर स्मॉलर साइज में सबसे स्मॉल साइज होता है उसको टेलेंजेक्टेसियस बोलते हैं, 1 mm से भी कम उसका जो डायमीटर और थिकनेस हुआ। और स्पाइडर वेन अगर 1 से 3 और 3 mm से भी ज़्यादा हो गया तो वारिकोज वेन। क्या होते हैं सर ये सब, क्या है? देखिए, वाल्व कभी कभी एज है ना, ड्यूरिंग एजिंग के कारण बूढ़े हो जाते हैं, या फिर बहुत देर कोई खड़ा रहता है, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस, बहुत देर 6 घंटा 8 घंटा जिसका काम है, स्टैंडिंग वाला काम है, खड़ा है ना, तो उनके वाल्व्स धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम वीक हो जाते हैं और ये फंक्शन अच्छे से नहीं करते हैं। ब्लड यानी कि वापस आ जाता है ना, और वो वेन्स फैल जाते हैं, है ना, उसका डायमीटर बढ़ जाता है, तो उसके कारण ये चीज़ होता है। इसके कारण पेन भी हो सकता है ना, और ये बल्ज आउट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? वेरिकोज वेन। ये टर्म याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? घबराइए नहीं टर्म से, ठीक है ना, याद रखिए, है ना। ऐसे टर्म्स तो आपको MBBS में और भी पढ़ने हो गए, नॉट इवन BSc बायोलॉजी वगैरह है ना, उन लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है सबका जानना, ठीक है। चलिए, ये एक ओवरऑल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि हार्ट के पास से जो भी ब्लड वेसल्स आता है ना, आर्टरी आया है ना एओर्टा से, तो वो लार्जर आर्टरी होता है ना, लार्जर आर्टरी हुआ, फिर मीडियम साइज आर्टरी हुआ, फिर स्मॉल साइज आर्टरी हुआ, फिर उसके बाद आर्टरियोल बना, आर्टरियोल से फिर कैपिलरी में ब्रांच आउट हो गया, फिर सारे कैपिलरीज में डिफ्यूजन हुआ तो वो सब कलेक्ट किया, फिर सब्सटेंस कलेक्ट करने के बाद वो फिर वेन्यूल बनाया, है ना, वेन्यूल फिर कलेक्ट होके फिर क्या बनाए? वेन बनाए, फिर वेन से लार्ज वेन गया, वेन से फिर वेना कावा में चला गया, लार्जेस्ट वेन में वापस से हार्ट में चला गया। और इसी के अराउंड जो ऊपर होगा वो ज़्यादा थिक होगा, और जैसे जैसे वो हार्ट से दूर होते जाएगा, थिन होते जाएगा, तो उसका स्मॉल हो जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कौन सा होगा? कैपिलरी होगा, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिर्फ ट्यूनिका इंटरना प्रेजेंट होता है, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना एब्सेंट। कैपिलरी में ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना एब्सेंट होता है। देखिए, ये मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा भी है, देखिए, ट्यूनिका इंटरना इज प्रेजेंट इन कैपिलरी। ट्यूनिका कैपिलरी सबसे स्मॉलेस्ट होता है, इसके अंदर सिर्फ ट्यूनिका इंटरना का लेयर प्रेजेंट होता है, जो बाहरी दोनों लेयर है वो दोनों एब्सेंट होते हैं, ठीक है। देन कम्स अबाउट, वी हैव टू डिस्कस अबाउट कैपिलरी। कैपिलरी क्या है? कैपिलरी वो ब्लड का वेसल है जहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट होता है और सबसे थिनेस्ट, सबसे थिन होता है, और वहाँ पे सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस अकर ओवर हियर। तो जो भी सब्सटेंसेस जैसे कि आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, और जो भी सब मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जैसे अच्छा है कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, तो ये सब का जो भी एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज हैपनिंग थ्रू द कैपिलरीज, ठीक है। और एक और यहाँ पे देख लीजिए, एक वर्ड है मेटा आर्टेरियोल। ये क्या है सर? मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े है ना, लार्जर एओर्टा से आया है ना, तो स्मॉल साइज लार्ज आर्टरी, मीडियम साइज आर्टरी, फिर स्मॉल आर्टरी, फिर उसके बाद आर्टरियोल बना है ना, आर्टरियोल के बाद मेटा आर्टरियोल बनता है, मेटा आर्टरियोल के बाद फिर वो कैपिलरी में डिवाइड हो जाता है, फिर सारा कैपिलरी फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करके यूनाइट करके क्या बनाता है? वेन्यूल। वेन्यूल फिर स्मॉल वेन बनाएंगे, स्मॉल लार्जर वेन बनाएगा, फिर वो वेना कावा में चला जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से ऐसे हार्ट में पहुँच जाता है, अंडरस्टूड। देन कम्स सम एक्स्ट्रा पॉइंट, है ना, ये एंजियोजेनेसिस का है, ये आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए पॉइंट क्या है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैपिलरीज, इसको दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस बिकॉज न्यू सेल्स दे नीड ऑक्सीजन एंड दे ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए न्यू कैपिलरीज डेवलप हो जाता है। जैसे कि अगर हाथ में चोट लग गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे टिश्यूज़, न्यू टिश्यूज़ बने, तो न्यू टिश्यूज़ को कैपिलरीज भी चाहिए होगा ना, तो इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू ब्लड वेसल्स ये प्रोसेस होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एंजियोजेनेसिस। देखिए, इसको मैं एक एनिमेशन के जरिए भी आपको दिखाता हूँ, और 1 मिनट बताता हूँ, 1 मिनट। देखिए, ये यहाँ पे एंडोथेलियल सेल है ना, एंडोथेलियल सेल के अंदर कोई VGF करके है ना, कोई फैक्टर होता है, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, वो रिलीज करता है, जिसके कारण एंडोथेलियल सेल मोटाइल हो जाते हैं। मोटाइल हो जाते हैं तो दे स्टार्ट्स
मूविंग आउट, मोटाइल मतलब कि मोबिलिटी उसके अंदर आ जाता है, और ये मूव करते हैं और फिर इसके अंदर एक स्प्राउट जैसा डेवलप होता है, दिख रहा है ना स्प्राउट, हरा हरा ये ब्रांचेस डेवलप होता है, और फिर वो इसी तरह धीरे धीरे सेल्स ग्रो करने जाते हैं, और इसके अंदर फिर जो धीरे धीरे यहाँ पे इंटरनल वैक्यूल्स डेवलप हो जाता है। इंटरनल वैक्यूल्स जैसे ये ब्लैक कलर का दिख रहा है आप लोगों को, ब्लैक कलर का ये बन रहा है, इंटरनल वैक्यूल्स इन्हें कहते हैं। इंटरनल वैक्यूल्स डेवलप करके और फिर ये सारे इंटरनल वैक्यूल्स यूनाइट करके एंड देन दे यूनाइट टू फॉर्म ए ल्यूमेन। ल्यूमेन वही है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा, इस तरह वापस इसमें ब्लड फ्लो करने लगता है, इस तरह स्ट्रक्चर बन गया, न्यू कैपिलरी बन गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ एंजियोजेनेसिस। देन कम्स अबाउट फिर टॉपिक अबाउट द कैपिलरी का थोड़ा और डिटेल्स जान लीजिए। टाइप्स ऑफ कैपिलरीज ना, मोस्टली इसमें क्वेश्चंस कम आते हैं बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि कंटिन्यूस कैपिलरी होता है, फेनेस्ट्रेटेड और डिसकंटिन्यूस, तीन टाइप के कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कंटिन्यूस कैपिलरी। कंटिन्यूस कैपिलरी में क्या होता है, जो इंटरसेलुलर क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है। 1 मिनट, लेट मी ब्रिंग आउट द पॉइंट। इंटरसेलुलर क्लेफ्ट ये दिख रहा है, इंटरसेलुलर क्लेफ्ट यहाँ पे है ना, दो एंडोथेलियल सेल के बीच में जो गैप है उसको थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर क्लेफ्ट, है ना। इसी इंटरसेलुलर क्लेफ्ट का गैप हो जाता है, इसके थ्रू मॉलिक्यूल्स मूव आउट और मूव इन करते हैं, तो इसको कंटिन्यूस कैपिलरी बोला जाता है। और इसके अंदर टाइट जंक्शन भी प्रेजेंट होते हैं ना मोस्टली, तो इसके अंदर ज़्यादा लीकेज नहीं होता है, लीस्ट परमिएबल होता है, बहुत ही माइनर इसके अंदर गैप प्रेजेंट होता है। ये किसमें प्रेजेंट होता है, फैट टिश्यूज में, मसल्स में, ब्रेन में और लंग्स में। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैपिलरी, कंटिन्यूस कैपिलरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी क्या है सर, ये बहुत अजीब नाम है, नहीं फेनेस्ट्रा, देखो फेनेस्ट्रा वर्ड से आया है। फेनेस्ट्रा क्या है, फेनेस्ट्रा जो भी एंडोथेलियल सेल होता है ना, इसके वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल, एंडोथेलियल सेल है ना, तो उसके ऊपर कवरिंग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल्स डेवलप हो जाते हैं, इस होल्स को क्या बोलते हैं, पोर्स को क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रे। फेनेस्ट्रे वर्ड से ही आया फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। क्यों आया सर, इसका एक्सचेंज ज़्यादा हो जाएगा ना, पोर्स ऑटोमेटिकली पोर्स बन गए तो जैसा मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज ज़्यादा होगा। और ये किस में प्रेजेंट होता है, किडनी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में ये आता है, ये किडनी ग्लोमेरुलस पढ़ेंगे ना एक्सक्रीटरी चैप्टर में, हम लोग आने वाले दिनों में पढ़ेंगे भी, और जो लोग कुछ लोग पढ़े हुए भी होंगे तो जानते होंगे है ना, किडनी ग्लोमेरुलस में फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी प्रेजेंट होता है, इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ब्लड का, ठीक है। फिर इसके अलावा और भी एग्जांपल्स क्या है, इंटेस्टाइनल विलाई और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट कम्स द साइनोसाइड्स या फिर डिसकंटिन्यूस कैपिलरी, है ना। साइनोसाइड मतलब साइनस के जैसा दिखने वाला, है ना, डायलेटेशन है ना, थोड़ा फैल जाता है इसके अंदर, फैल किसका, तो फैलने के कारण क्या हो जाता है, लार्जर इंटरसेलुलर क्लेफ्ट, जैसे ये देख रहा है ना, गैप दिख रहा है ना, जो एंडोथेलियल सेल के बीच जो गैप था बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस कैपिलरी। डिसकंटिन्यूस हो गया, एक साथ नहीं है। और फिर इसके अंदर जो पोर्स होते हैं, ये देखिए पोर्स का साइज़ देखिए, है ना, पोर्स भी का साइज भी ज़्यादा हो जाता है। तो और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कभी कहीं कहीं डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं और कहीं कहीं तो एब्सेंट भी हो जाते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है, किस में प्रेजेंट होता है, ये बोन मैरो में, लिवर में और स्प्लीन में, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्या है, कंटिन्यूस, फेनेस्ट्रेटेड और डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज, ठीक। जिसके बाद नेक्स्ट है ना, आजकल लास्ट टॉपिक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बताइए, सबसे ज़्यादा ब्लड किस में होता है, वेन में। वेन और जो वेन्यूल होता है, ये पूरा जो सिस्टम है इसके अंदर ल्यूमन ज़्यादा होता है, ब्रॉड होता है, तो ज़्यादा वॉल्यूम अटेगा ना, बहुत ज़्यादा ब्लड उसके अंदर आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये सबसे ज़्यादा एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम को कंसिडर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट कंसिस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है हमारे फुल बॉडी में, तो अप्रॉक्सीमेटली 64% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम किस में होता है, वेन्स और वेन्यूल में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यू शुड नो कि पल्मोनरी सर्किट मतलब पल्मोनरी वेसल्स जो होता है, आर्टरी और जो वेन है पल्मोनरी, उसका 9% कंस्टिट्यूट करता है, और हार्ट 7%, और फिर आर्टरीज के अंदर 15% और कैपिलरीज 5%। तो एटलीस्ट ये याद रखिएगा, आर्टरीज का 15% और ये तो याद रखना ही है। वेन्स के अंदर 64% ऑफ ब्लड वॉल्यूम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ब्लड प्रेजेंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। So let us revise what we have studied today.
ओके, चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सर्कुल है ना, ब्लड आज हम लोग सर्कुलेटरी पाथवेज देखे थे। डबल सर्कुलेशन होता है हमारे अंदर, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो कि लंग्स में होता है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है। तो पल्मोन यानी कि 2 बार ब्लड लंग्स के अंदर आता है, तो इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर लार्जेस्ट वेन क्या होता है, इन्फीरियर वेना कावा, उसके बाद सुपीरियर वेना कावा। तो दिस वेना कावा को लार्जेस्ट वेन कंसिडर किया जाता है। टॉकिंग अबाउट राइट एट्रिया, इसके अंदर कौन कौन ब्लड वेसल आएगा, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। और उसके लेफ्ट एट्रिया में क्या क्या ब्लड आएगा, पल्मोनरी वेन का 4 पल्मोनरी वेन्स आएंगे। ठीक है, फिर जो ब्लड वेसल्स एट्रिया क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीजनेशन लंग्स में जाएगा, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओटा में के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो लार्जेस्ट आर्टरी क्या है, एओटा। और ब्रांचेस ऑफ एओटा क्या है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एटलीस्ट इतना आप लोग को आना चाहिए कि जो असेंडिंग एओटा है वहाँ से राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आता है, और आर्च ऑफ एओटा से ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और उसके बाद वो नीचे चला जाता है डिसेंडिंग एओटा, और उसके डायफ्राम से नीचे वाले को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल एओटा, और 5th लंबर वर्टिब्रे के हाइट पे वो डिवाइड हो जाता है उसको कॉमन इलियक आर्टरीज में, जो कि लेग्स को ब्लड सप्लाई करता है, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी और राइट कॉमन इलियक आर्टरीज। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी और एओटिक बॉडीज़ के बारे में हम लोग पढ़े। कैरोटिड साइनस याद रखना है, साइनस से क्या याद मैंने कराया है, साइनस से थोड़ा डायलिटेशन है, चौड़ा एरिया है ना, तो ये वहाँ पे वो प्रेशर से रिलेटेड काम करेगा। तो उसमें बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं विच कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। इसका लोकेशन कहाँ है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, फिर कैरोटिड बॉडीज क्या है, कीमो रिसेप्टर्स होता है, इसका फंक्शन क्या है, इट डिटेक्ट्स द चेंजेस इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच लेवल इन द ब्लड। इसका लोकेशन क्या है, बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और एओटिक बॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आर्क ऑफ एओटा में। दोनों बॉडीज आ गए, तो दोनों बॉडीज में कैरोटिड बॉडीज और एओटिक बॉडीज में दोनों का फंक्शन क्या है, कीमो रिसेप्टर्स का। ठीक है, साइनस का फंक्शन क्या है, कैरोटिड साइनस का बैरो रिसेप्टर का प्रेशर से मेंटेन करने का। ठीक है, फिर एओटिक ब्रांचेस तो हम लोग जान लिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, आर्टरी है ना, अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन वापस ब्लड लाता है। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच, है ना, आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड मोस्टली कैरी करता है, बट इसके एक्सेप्शन है ना, तो पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन और अम्बिलिकल आर्टरी एंड वेन इन फीटस। ठीक है, और मोस्टली आर्टरी डीप सीटेड होता है, बट कुछ सुपरफिशियल भी होते हैं। ठीक है, जहाँ पे पल्स मेज़र कर सकते हैं, और वेन सुपरफिशियल होता है, इसीलिए वहाँ से हम लोग ब्लड डोनेशन या ब्लड जब सिरिंज से लिया जाता है तो वेन से लिया जाता है। और आर्टरी मस्कुलर होते हैं ज़्यादा, उसका थिक वॉल होता है, ल्यूमन कम होता है, और वेन्स का ज़्यादा होता है। ठीक है, और आर्टरीज का ब्लड फ्लो इसमें फास्ट होता है, ज़्यादा होता है, और वो कोलैप्स नहीं करते हैं, और वेन्स कोलैप्स कर सकते हैं, और इसके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होता है ड्यू टू डिक्रीज फ्लो ऑफ द ब्लड। लेयर्स ऑफ द ब्लड वेसल इंपॉर्टेंट है, क्या है, ट्यूनिका मीडिया इंटरना, पहला अंदर से स्टार्ट करेंगे तो ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका इंटिमा में क्या प्रेजेंट होता है, एंडोथेलियल लेयर, और फिर इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर इंटरनल इलास्टिक लैमिना इफ़ वी कंसिडर द आर्टरी। और ट्यूनिका मीडिया में क्या होता है, स्मूथ मसल सेल्स का बना होता है, और इफ़ यू टॉक अबाउट आर्टरी देन इसमें एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना भी प्रेजेंट होता है। और लास्ट थर्ड वाला क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होता है, और अंदर में ल्यूमेन होता है, वेन्स के अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर वेरिकोज वेन याद रखिएगा, वेरिकोज वेन लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशंस और एजिंग वगैरह कंडीशंस के कारण यहाँ पे वेरिकोज वेन डायमीटर बढ़ जाता है ना, वाल्व का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड बंद हो जाता है, इसके कारण वेरिकोज वेन उसको बोलते हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स जो कि डिपेंड करता है, जैसे कि हार्ट से दूर जाएगा उसका थिकनेस घटते जाएगा, सबसे ब्लड टिश्यूज़ के पास सबसे स्मॉल हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी में ओनली ट्यूनिका इंटरना इज़ प्रेजेंट। ठीक है, और कैपिलरी में ही सारा एक्सचेंज होता है सारे सब्सटेंसेस को, इसलिए उसको एक्सचेंज वेसल्स भी बोलते हैं, है ना। और
तो कैपिलरी वेसल्स को एक्सचेंज वेसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इस फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैपिलरीज को क्या बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस, ठीक। टाइप्स ऑफ कैपिलरीज 3 टाइप्स के हमने देखे, कंटिन्यूस, फेनेस्ट्रेटेड और डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होते हैं, टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, लीस्ट परमेबल होते हैं और थोड़े बहुत स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिसको इंटरसेलुलर क्लेफ्ट बोलते हैं। और दे आर द मोस्ट कॉमन। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज के अंदर फेनिस्ट्रा प्रेजेंट होता है, दे आर द पोर्स प्रेजेंट इन द एंडोथेलियल सेल्स। और ये मोस्टली किसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना है, किडनी ऑफ ग्लोमेरुलाई। किडनी ऑफ ग्लोमेरुलाई में ये प्रेजेंट होते हैं, अंडरस्टूड। और फिर इसके अलावा इंटेस्टाइनल विलाई और एंडोक्राइन ग्लैंड। डिसकंटिन्यूअस के अंदर लार्ज इंटरसेलुलर क्रेफ्ट होते हैं और इनकम्प्लीट बेसमेंट मेम्ब्रेन, या फिर दे कैन बी इवन एब्सेंट, और इंडोथेलियल पोर्स भी लार्ज होते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है, दे प्रेजेंट इन बोन मैरो, लिवर एंड स्प्लीन। डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना है कि एट एनी गिवन पॉइंट वेन्स वेन्यूज़ में सबसे ज़्यादा 64% ऑफ ब्लड होता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर, ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो को लाइक किए हैं तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। like and please like and subscribe. Thank you so much for your time and patience.